नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं साइंस का पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। सो आइए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो फर्स्ट पॉइंट इज द साइंस। तो साइंस, the knowledge of systematic and logical method to study is called as science. The knowledge of systematic and logical method to study is called as science. किसी भी क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हिंदी में किसी भी क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसको सीखने के लिए क्रम से होना जरूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी अच्छी तरह से गेन करना चाहते हैं तो आप उसके सिस्टमेटिक वे, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तभी जाकर के हमें गुड नॉलेज होगा और उसी को हम भी गेन करेंगे। ठीक है, तो साइंस समझते हैं। साइंस, द नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड टू स्टडी इज कॉल्ड एज साइंस। एक्चुअली साइंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इन बिगिनिंग साइंटिस्ट डिवाइड थिंग्स into two parts, living things and non-living things. All living things one together, all non-living things one together. किसी भी चीज के बारे में गहरी अध्ययन करने के लिए, अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। लिविंग थिंग्स को एक साइड और नॉन लिविंग थिंग्स को अदर साइड। उसी प्रकार से साइंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी। तो टाइप्स ऑफ साइंस एंड साइंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज फिजिकल साइंस। Biology, the branch of science in which we study about living things and their activities is called as biology. All living things biology, all non-living things physical science. Clear? अब physical science also divided into two parts. All reactive things one side, all non-reactive things one side. तो all non-reactive things is called the physics और all reactive things is chemistry। अब आइए चलते हैं कि फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब फिजिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट non-reactive, non-living things and their activities is called as physics. The branch of science in which study about reactive non-living things is called as chemistry. Reactive non-living things, जितने रिएक्शन करने वाले थिंग्स होगा वो केमिस्ट्री के अंदर, और जो नॉन रिएक्टिव थिंग्स है, जो रिएक्शन नहीं करने वाले होते हैं, वो फिजिक्स के अंदर आते हैं। और लाइक दिस बायोलॉजी आल्सो, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच study about living things and their activities is called as biology. Biology also divided into two parts, zoology और botany. Zoology and botany. So what is the definition of zoology? The branch of science in which we study about human beings, animals, birds, insects, microorganisms, all the living things is called as zoology. Means, what is the definition of zoology? The branch of science in which we study about human beings, animals, birds, insects, microorganisms are called as zoology. And the branch of science in which we study about plants and their activities is called as botany. Clear? आइए फिर एक और रिवाइज हम कर लेते हैं कि what is the definition of science? The knowledge of systematic and logical method to study is called as science. Science divided into two parts, physical science and biology.
Physical science, the branch of science in which we study about non-living things and their activities, is called as physical science. The branch of science in which we study about living things and their activities is called as the biology. Physical science divided into two parts, physics and chemistry. Physical science, the branch of science in which we study about non-reactive, non-living things and their activities is called as the physics. The branch of science in which we study about reactive, non-living things and their activities is called as the chemistry. Biology divided into two parts, zoology and botany. The branch of science in which we study about human beings, animals, birds, insects, etc. is called as zoology. The branch of science in which we study about plants and their activities is called as botany. The zoology, the branch of science in which we study about human beings, animals, birds, insects and their activities is called as zoology. The branch of science in which we study about plants and their activities is called as botany. इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस रहा है, सारे के बारे में पहले जानकारी कर लेना है कि बिगिनिंग में साइंस क्या था, कितने पार्ट में डिवाइड किया, धीरे धीरे बढ़ते सारे आपका पूरा का पूरा एक नया चैप्टर बनता चला जाता है, एक विषय बनता है। सब जगह आगे चल करके 9-10th लेवल तक तो साइंस एक ही बुक में है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी भी है, बॉटनी भी है। लेकिन हायर क्लासेज जाने के बाद 11-12 के बाद फिजिक्स की अलग सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो गया, जियोलॉजी अलग हो जाता है, बॉटनी अलग हो जाता है। कॉलेज लेवल में जाते जाते एक का उसके भी पार्ट जो है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट का भी पार्ट्स होते हैं, वो भी आप अलग अलग एक तरह से बुक बन जाती है। इस प्रकार से साइंस के बारे में जितना है पर इंट्रोडक्शन आपको साइंस से आपको समझ में आ गया होगा। साइंस क्या है, साइंस के कितने भाग में डिवाइड किया गया है, और कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं रहेगा कि साइंस का 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं, साइंस का 2 ही भाग होता है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होता है, जूलॉजी और बॉटनी। सभी स्पेल मैंने कर चुका हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।